Hello everyone. Welcome to our last lecture of this unit number 40, biomolecules. So in this session number 21, now we continue with our journey of the solutions of NCERT exemplar. In last sessions we completed up to 28 questions regarding to the MCQs. Today we start with a short answer type of questions. So number 29, the question is asked in manner, name the sugar present in milk. How many monosaccharide units are present in it and what are such oligosaccharides called? We know that the sugar present in the milk is called as an lactose, and two monosaccharide unit means glucose and galactose are present in it. So such a oligosaccharide is called as an disaccharide. How do you explain the presence of all the 6 carbon atoms in glucose in a straight chain? So we know that glucose on prolonged heating with hydroiodic acid gives normal hexane. So normal hexane has a 6 carbon atoms connected in a straight chain. So therefore glucose also has 6 carbon atoms connected in a straight chain. Next, 31. So question number 31 is like that. In a nucleoside, a base is attached at 1' position of sugar moiety. Nucleotide is formed by linking of phosphoric acid unit to the sugar unit of nucleoside. At which position of sugar unit is the phosphoric acid linked in a nucleoside to give a nucleotide? Okay, so it's a simple, very simple question. यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस ज्यादा लंबा है, आंसर बिल्कुल शॉर्ट है. Phosphoric acid's unit is linked at the 5' position of sugar moiety of a nucleoside to form a nucleotide. तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट, नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसैकेराइड यूनिट इन polysaccharides. So in polysaccharide molecule, the monosaccharide units are linked through glycosidic linkage. Next, under what condition glucose is converted to gluconic acid and saccharinic acid? So we know that on oxidations with a mild oxidizing agent such as bromine water, so glucose is converted into gluconic acid, and oxidation with a strong oxidizing agent such as concentrated HNO3, so our glucose is oxidized to saccharinic acid. Okay, next one, monosaccharide contain carbonyl group, hence are classified as aldose or ketose. The number of carbon atom present in the monosaccharide molecule are also considered for classification. In which class of monosaccharide will you place fructose? फिर से मैंने बोला क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लंबा खींचा हुआ है, आंसर बहुत शॉर्ट है. Fructose has 6 carbon atoms and containing a ketone group. So fructose is called as a ketohexose. It's a simple, short and sweet. The letters D and L, capital D and L, before the name of a stereoisomer of a compound indicate the correlation of configurations of that particular stereoisomer. This refers to the relations with one of the isomers of glyceraldehyde. So predict whether the following compound has capital D or L configurations. Right? We know that the orientation of the OH group, right? Orientation of the OH group at the penultimate chiral carbon. Penultimate हम किसको बोलेंगे? Last but one और C5 पोजीशन को यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है? It's towards to left. Okay, so it's given compound as a L configuration. तो यहाँ पे L configurations में ही वो चला जाएगा. Next है aldopentose named as ribose and 2-deoxyribose are found in nucleic acid. What are their relative configurations? So the open chain of chain structures of these ribose and 2-deoxyribose, right? They all both of them having a capital D configuration. क्योंकि हमने पहले से ही आपको बताया हुआ है कि जो बायोमोलिक्यूल्स है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, वो कैपिटल DE होता है, ठीक है? Which sugar is called a invert sugar and why it is called so? क्यों हम इसको invert sugar बोलते हैं?
तो हमें मालूम है कि सुक्रोज इज कॉल्ड एज एन इनवर्ट शुगर बिकॉज सुक्रोज इज डेक्स्ट्रा rotatory naturally aqueous solution of sugar means sucrose is a plus 66.5 degree is a dextra rotatory, but when it's hydrolyzed, so it gives a capital D glucose and capital D fructose in equimolar mixture, and we know that the glucose is dextro rotatory plus 52.5 and fructose is levo rotatory minus 92.5. So as a result, the net resultant mixture is minus 20. It's a levo rotatory. So now this product change from dextro to levo after hydrolysis is called as an invert sugar. Next, amino acids can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on depending upon the relative positions of amino group with respect to carboxyl group. So which type of amino acid form polypeptide chain in protein? So हमें मालूम ही है ना, अल्फा एमिनो एसिड्स ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन में बनाते हैं, राइट? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. फिर यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अल्फा हेलिक्स is a secondary structure of proteins formed by twisting of polypeptides chain into right-handed screw-like structure. So which type of interactions are responsible for making the alpha helix structure stable? So we know that the alpha helix structure of polypeptide chain is stabilized by intramolecular hydrogen bonding, in which your C double bond of one amino acid residue in one turn forms a hydrogen bond with NH group of the fourth amino acid in the adjacent turn. Okay, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है. मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन अपनी ओर से भी कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है ना उससे भी अच्छी तरह से मैं आपको जो भी अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में भी समझाया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा अपनी तरफ से भी आई वांट टू डिटेल सम और एडिट सम पोर्शंस टू. ओके, so some enzymes are made after the reactions where they are used. What name is given to class of enzymes in which with a catalyst the oxidation of one substrate with a simultaneous reduction of the another substrate? तो हमें मालूम ही है ना कि enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate, तो उसको हम सिंपल वन वर्ड में लिख सकते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्योंकि दोनों प्रोसेस वो एक ही एंजाइम्स कर रहा है. ठीक है. ड्यूरिंग द कर्डिंग ऑफ मिल्क व्हाट हैपेंस टू द शुगर प्रेजेंट इन इट? तो हमें मालूम है कि ड्यूरिंग द कर्डिंग ऑफ मिल्क द मिल्क शुगर लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तो वो लैक्टिक एसिड में चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42. हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन ग्लूकोज मोलेक्यूल? सो वी नो दैट एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine or few drops of concentrated H2SO4, so it's converted into glucose pentacetate, so it confirms the presence of 5 hydroxyl groups in glucose molecule. Why does the compound A given below not form an oxime? क्यों नहीं बना पा रहा है? आप देखिए, glucose pentacetate does not have a free hydroxyl group. यहाँ पे free hydroxyl group है ही नहीं at C1 position, so hence cannot be converted into open chain form having a free CHO group. Therefore ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइन. ठीक है. यहां पे दिया गया है व्हाई मस्ट विटामिन सी बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट? वी ऑल नो दैट दिस विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल, सो एक्सेस ऑफ इट्स रेडिली एक्सक्रिएटेड इन यूरिन, वो यूरिन में चला जाता है. सो कॉन्सिक्वेंटली इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हेंस इट शुड बी रेगुलरली सप्लाइड इन डाइट. फाइन. Sucrose is dextrorotatory, but the mixture obtained after hydrolysis is levorotatory. तो वो तो फिर से ये दूसरी बार आया है. Sucrose is a dextrorotatory with a specific rotation. मैंने अभी आपको बोला था कि इसका जो अल्फा है वो plus 66.5 डिग्री है. But on hydrolysis, it gives a equimolar amounts of glucose which is dextrorotatory and fructose which is levorotatory. So we know that the levo rotation of fructose minus 92.4 is much more than the dextro rotation of glucose plus 52.5. Therefore, the resulting solutions become levo rotatory. इसलिए तो उसको इनवर्ट शुगर बोला गया है. ठीक है. Amino acids behave like salts rather than simple amines or carboxylic acid. ये फिर से आ गया है. हमें मालूम है in aqueous solution
the carboxyl group lose a proton and amino group accept a proton. So in other words, the carboxyl and amino groups they neutralize each other to form a zwitterion. तो वो zwitterion बना पाएंगे. Same way, the structure of glycine and alanine are given below. Show the peptide linkage in glycyl alanine. तो हमें glycyl alanine में वो कुछ देखना पड़ेगा. तो हमें मालूम है कि in glycyl alanine the carbonyl group of glycine combines with the amino group of alanine to form a peptide bond, means CONH bond between them. ओके तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसाइल एलेनिन बोल पाएंगे. ठीक है, यहां का OH और यहां से H निकल के CONH बॉन्ड हो जाएगा. फिर प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ अ यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ नेटिव प्रोटीन. बट व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इट सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज like change in temperature or a chemical change like change in pH. So denaturation of protein take place. So explain the cause. यह सभी क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे हैं लेकिन उसके आंसर बहुत छोटे छोटे हैं. We know that the due to a physical change or a chemical change, hydrogen bonds in proteins are broken. ठीक है, हमें मालूम है कि ग्लोब्यूल्स प्रोटीन होते हैं वो अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकोइल्ड टू फॉर्म अ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल में चले जाएंगे. सो एज अ रिजल्ट सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड एंड द प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. फिर से यहाँ पे लगाया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एसिड कैटेलाइज्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलोजूल पर मोल, while the activation energy is only 2.15 kilojoule per mole when hydrolysis is catalyzed by the enzyme sucrase. Explain. हमें मालूम है कि enzymes are the biocatalyst. They reduce the magnitude of activation energy by providing alternative path. वो दूसरा एक path select करता है और activation energy E को down कर देता है. So for example in the hydrolysis of sucrose, the enzyme sucrase reduce the activation energy. कहां से 6.22 किलो जूल से वो घटा के 2.15 किलो जूल पर ले जा रहा है. So as a result enzyme catalysis reactions occur at much faster rate than the ordinary laboratory chemical reactions using conventional catalyst. ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा. ये यहां पे how do you explain the presence of aldehyde group in glucose molecule? हमें मालूम ही है कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन टू फॉर्म एन मोनोऑक्साइन एंड एड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनेट टू गिव अ साइनोहाइड्रिन. Therefore, glucose contains a carbonyl group which can be either aldehyde or a ketone. But on mild oxidations with bromine water, glucose gives a carboxylic acid, means gluconic acid, having the same 6 carbon atoms present in the glucose. So which indicates that carbonyl group present in glucose is an aldehyde group, not a ketone group. ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा. Which moieties of nucleosides are involved in the formation of phosphodiester linkage present in dinucleotides? What does the word diester in the name of linkage indicate? Which acid is involved in the formation of this linkage? So in the formation of dinucleotide हमें मालूम है 3 days hydroxyl group of one nucleotide unit and 5 days hydroxyl group of the another nucleotide molecule are involved to form the phosphodiester linkage. Here the acid involved in this linkage is phosphoacetic acid and the word diester in the linkage indicates that 2 hydroxyl group of phosphoric acid are involved in the formation of ester linkage. तो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं उसको. Then what are the glycosidic linkage and in which type of biomolecules are they present? यहाँ पे ये पूछा गया है. अब देखिए the ether linkage which is connected the 2 molecules, हम इसको ऑक्साइड लिंकेज भी बोल सकते हैं. A monosaccharide are called as a glycosidic linkage and they are present in disaccharide, trisaccharide और हम इसको बोल सकते हैं ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि हमने आगे भी बताया था कि ओलिगोसैकेराइड मींस डाई टू डेका इन पॉलीसैकेराइड्स. ओके फाइन. मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो बुक है उसमें जो दिया है उससे भी मैं अच्छी तरह से अपना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए
ठीक है. विच मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन स्टार्च, सेल्यूलोज एंड यहाँ पे थोड़ा गलती है, ग्लाइकोजन है, यहाँ पे ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन एंड विच लिंकेज लिंक दिस यूनिट. ठीक है. सो वी नो दैट ऑल दिस गिवन पॉलीसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. ओके, बट हमें मालूम है कि इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ सेल्यूलोज there is a beta glycosidic linkage are present between glucose units. ठीक है. How do enzymes help a substrate to attacked by a reagent effectively? तो हमें मालूम है the activate sites of enzymes, जो enzymes की activate site होती है, they hold the substrate, okay, in a suitable position, so that can be attacked by the reagent effectively. तो इस तरह से वो यहाँ पे अटैक हो सकता है. डिस्क्राइब द टर्म कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन यूज फॉर द एमिनो एसिड्स विथ एग्जांपल. तो हमें मालूम है कि नेचुरली द एमिनो एसिड, जो भी अल्फा एमिनो एसिड हमें नेचर में मिल रहे हैं, हमें मालूम ही है कि वो एल ही होते हैं, कैपिटल एल ही होते हैं. इफ द NH2 ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन is oriented towards left, it is referred to as a L amino acid. But NH2 group is oriented towards right, so it's referred to a D amino acid. तो यहाँ पे देखिए, राइट में है तो D है, लेफ्ट में है तो L. कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पे OH था, यहाँ पे NH2 है. हमें मालूम है कि there are the limitations in capital DL nomenclature, क्योंकि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. 56 में हम चले जाते हैं. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, एक्सप्लेन विथ रिएक्शंस. देखिए, हमें मालूम है कि इन ग्लूकोज देयर इज वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, while all the four remaining hydroxyl group which are present on carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5, they are called as a secondary hydroxyl group. And we know that primary hydroxyl groups are easily oxidized to give a carboxylic acid. But in case of secondary hydroxyl groups, they definitely undergo oxidations, but only under drastic conditions, right? Either we have to use such a type of temperature and strong oxidizing agent. For example, glucose on oxidations with nitric acid gives a dicarboxylic acid, saccharic acid, have the same number of carbon atom as a glucose. So it indicates that glucose contain one hydroxyl group while the remaining 4 are secondary hydroxyl group. मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसलिए ये थोड़ा मैं अपनी तरह से भी यहाँ से थोड़ा जोड़ रहा हूं. ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको. 57 नंबर है यहाँ पे दिखाया हुआ है. कोएगुलेशन ऑफ एग white on boiling is an example of denaturation of protein. Explain it in terms of structural changes. ये फिर से एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है. हमें मालूम है कि when white of an egg, उसको हम एग एल्बुमिन बोलते हैं, राइट, इज बॉइल्ड, तो वो एग एल्बुमिन क्या है? विच इज soluble globular protein which is present in it is converted into insoluble fibrous protein. क्योंकि हमें मालूम है कि ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, उसको टेम्परेचर या पीएच का माइनर भी हम चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर्स में डीनेचुरेशन आ जाएगा. सो ड्यूरिंग दिस डीनेचुरेशन, तो पहला तो क्या होगा, जो ग्लोबुलर था तो ग्लोबुलर की वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो निकल गई. सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड, उसका निकल गए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही निकल गए हैं, तो सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर भी निकल जाएंगे. वाइल द प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या मतलब था, द सीक्वेंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, ओके, विच रिमेन्स इंटैक्ट, उसको कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है. तो ये हम 57 नंबर में लगा सकते हैं. तो ये थोड़ा शॉर्ट आंसर का जो पॉइंट है वो यहाँ हमने ले लिया है. अभी हम मैच द फॉलोइंग, ये बिल्कुल इजी होती है. हमें भी मालूम है कि कोई एक प्रोसेस हमें मिल जाए तो सभी आंसर हमें मिल सकते हैं. यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है वो है मैच द विटामिन गिवन इन कॉलम 1 विद द डेफिशिएंसी डिसीज दे कोज गिवन इन कॉलम 2.
तो बिल्कुल सिंपल है, विटामिन ए की वजह से ज़ेरोफ्थेल्मिया हमें मालूम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी है। विटामिन B1 से बेरी हो जाती है। विटामिन B12 जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उससे पेरिनिसिस एनीमिया होता है। विटामिन सी से हमें स्कर्वी यानी ब्लीडिंग ऑफ गम्स हमें यहाँ पे है। विटामिन डी की यहाँ पे जो बात की गई है तो हमें मालूम है उसके रिकेटस भी होता है और उससे ओस्टोमेलिया भी होता है जिसमें कैल्शियम का जो अमाउंट है वो गिर जाता है। विटामिन ई है जो यहाँ पे हमें दिखाया गया है, देखिए आप समझिए, उससे मस्कुलर वीकनेस की डेफिशिएंसी होती है, उसकी डेफिशिएंसी से। विटामिन के है तो वो क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है, तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, सेम 59 नंबर में दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द रिएक्शंस दे कैटालाइज गिवन इन कॉलम 2। इन्वर्टेज का क्या फंक्शन है, हमें मालूम है कि इन्वर्टेज है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर से के लिए जिम्मेदार है। माल्टेज है तो वो जो माल्टोज होता है तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एज एंजाइम काम कर रहा है। पेप्सिन का वर्क फंक्शन क्या है, विच हाइड्रोलाइज ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। यूरेज ये थोड़ा नया है क्योंकि ये जो यूरिया होता है उसका डीकम्पोजिशन करने के लिए यूरेज यानी वो एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर देगा। जाइमेज वो भी हमने पढ़ा हुआ है, आगे हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस और प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल में पढ़ा था। जाइमेज सो इट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है एसर्शंस एंड रीजन टाइप। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे कई बार क्या है, ये जो ऑर्डर है ना वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं, in the following questions a statement of assertions followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. Assertions and reasons both are correct statement and reason explain the assertions. Both assertions and reasons are wrong statement. C, assertion is correct, reason is wrong. D, assertion is wrong, reason is correct. And E, both are correct but reason does not explain assertion. तो हमें ये पता चल गया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, हमारा 60 नंबर का जो पॉइंट है वो यहां से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है कि D प्लस ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रा रोटेटरी इन नेचर, राइट। एंड रीजन यहाँ पे है D रिप्रेजेंट इट्स डेक्स्ट्रा रोटेटरी नेचर। नो, कैपिटल D प्लस डेफिनेटली जो है वो एसर्शंस बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो कैपिटल D है वो डेक्स्ट्रा, वो तो क्या करते हैं, जो हमें मालूम है कि capital D suggests that the configuration of hydroxyl group at the penultimate carbon is towards right, वो ये बता रहा है। तो वो कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी की बात नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए विटामिन डी क्या दिया हुआ है, अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्लियर, एंड विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल। तो हमें मालूम है कि दोनों एसर्शन एंड रीजंस बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज एक्सप्लेन द एसर्शन। ओके फाइन, फिर से हम यहां पे देखेंगे 62 नंबर हमें यहां पे दिया गया है। यहां पे हमें जो स्टेटमेंट 1 दिया है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज, हमें मालूम है बीटा होता ही नहीं है क्योंकि वो अल्फा से बने होते हैं। एंड रीजन दिया है, माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट इज लिंक्ड टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। तो अल्फा ग्लाइकोसिड, जो इसमें रीजन तो सही है लेकिन एसर्शन में क्या होना चाहिए, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होना चाहिए, बीटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट 63 नंबर में हमने यहाँ पे दिया गया है और वो आप समझिए, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशंस, तो वो भी सही है, सही है। आप फिर से देखिए 63 है मेरा, जो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं 63, उसमें आंसर क्या है, ई है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है या नहीं है, तो कि नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर अब अभी देखिए 64 में आप देखिए तो एसर्शंस हमें दिया गया है कि डीऑक्सीरिबोज इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, नहीं, डीऑक्सीरिबोज तो कार्बोहाइड्रेट ही है, यानी हमारा एसर्शंस रॉन्ग है। रीजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सो कंपाउंड्स व्हिच फॉलो CX, ये भी रॉन्ग है
क्योंकि अभी मॉडर्न डेफिनेशंस क्या है, मॉडर्न क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और सब्सटेंस विच गिव दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। ये थी मेरी करेक्ट डेफिनेशन। तो इसमें सो नहीं है, यानी दोनों गलत है। समझ में आ गया। 65 नंबर में हम चले जाते हैं। एसर्शन हमें यहाँ पे दिया गया है कि ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट एंड रीजन इट इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए बोथ आर रॉन्ग। ग्लाइसिन मे और may not be taken in diet, क्योंकि इट्स नॉट एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, इट्स नॉन एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड, इसलिए हमें फूड में लेने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। 66 नंबर है। एसर्शन हमें दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली, और रीजन दिया है एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इन अ सुटेबल पोजीशन। देखिए रीजन भी सही है, एसर्ट भी सही है, और दोनों का रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। तो ये जो पॉइंट हमारा एसर्शन और रीजंस का कंप्लीट होने के बाद हम लॉन्ग आंसर में चले जाएंगे। ठीक है, देखिए लॉन्ग आंसर में यहां पे दिखाया गया है कि राइट द रिएक्शंस ऑफ कैपिटल डी ग्लूकोज विच कांट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड हाउ कैन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन दिस रिएक्शंस। अभी देखिए लॉन्ग आंसर में मैं इतनी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये 2 या 3 बार हमने एक्सरसाइज में भी देखा हुआ था, इंटेक्स में भी एक क्वेश्चन का पूछा हुआ था, तो हमें मालूम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ड्रॉबैक्स ऑफ ये ओपन चेन स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक भी दिखाना है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर ये ड्रॉबैक को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपको दिखाना होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच एविडेंस कैपिटल डी ग्लूकोज वॉज असाइन्ड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो देखिए मैंने आपको वो बेयर्स का पहले जो हमने देखा था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए ब्रोमीन वाटर के साथ वो किस तरह से, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जो प्रोलॉन्ग हीटिंग के वजह से वो नॉर्मल हेक्सेन दे रहे हैं। फिर मैंने देखा था कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ प्रोसेस करते हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड दिखाते हैं। फिर टॉलेंस और फेलिंग के साथ उसने रिएक्शन किया, यानी आल्डिहाइड होगा ही। फिर मैंने आपको समझाया था कि उसका एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ एसिटाइलेशन किया तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिल रहा है, यानी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिर मैंने उसको नाइट्रिक एसिड के साथ भी हीट किया तो मुझे डाइसैकेरिक एसिड मिला, मींस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो इसका मतलब है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, राइट, और बाकी के 4 सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो पूरा हमने जो दिखाया था तो वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स आर essential for life in both plants and animals. Name the carbohydrates that are used as a storage molecules in plants and animals, and also the name carbohydrates and which are present in wood or in the fiber of cotton cloths. तो हम क्या करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट्स, हमें मालूम है, एज अ स्टार्च एंड इन एनिमल्स इट्स अ ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन वुड और इन द फाइबर ऑफ कॉटन क्लॉथ, और हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर भी डालने पड़ेंगे क्योंकि कौन से स्ट्रक्चर्स किस तरह से यहाँ से जुड़े हुए हैं अगर आपको समझना हो तो। फिर यहाँ पे फिर से दिखाया गया है कि एक्सप्लेन द टर्म प्राइमरी secondary structure of proteins and what is the difference between alpha helix and beta pleated C structure of proteins। तो पूरा हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दिखाना पड़ेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन का समझाना पड़ेगा। अल्फा हेलिक्स में क्या था, CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था एक ही हेलिक्स स्ट्रक्चर में। बीटा प्लेटेड में 2 पेप्टाइड के बीच में, मींस 2 हमारे जो पेप्टाइड है उसके बीच में हमारी जो अट्रैक्शंस था हाइड्रोजन बॉन्ड का वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन हमें करना पड़ेगा। और ये जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये यूनिट का भी लास्ट क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रेगमेंट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। तो जो हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस डीएनए करेंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा, रिबोस सुगर, इसमें हमें डीऑक्सी रिबोस सुगर और रिबोस सुगर का स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। फिर मुझे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन जो होता है, राइट, तो उसका भी स्ट्रक्चर्स मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको बोला है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रेगमेंट्स और एक फॉस्फोरिक एसिड का यूनिट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ड्रॉ द डायग्राम शो पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। तो उसका भी मुझे डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके मुझे बताना पड़ेगा कि उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो वॉटसन ने बताया था वो किस तरह से हम दिखा सकते हैं।
तो हम लॉन्ग आंसर में हमने बहुत ज्यादा उसके एफर्ट्स नहीं लिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे मेरा थियोरेटिकल लेक्चर था तो मैंने काफी अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से उसमें पढ़ाया हुआ है, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, फिर मैंने आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से ली हुई है, और यहाँ पे जो मैंने पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इन्हें यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए यूनिट से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।